السلام علیکم گائز، میں آپ کا ہوسٹ نعمان رضا۔ تو آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں۔ کرونا وائرس کے متعلق کچھ اہم ویڈیو ایک آئی تھی میرے پاس پوسٹ کرنے کے لیے، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ فیصل صاحب ہیں 10 تک نیوز بول، 10 تک پروگرام ہے بول نیوز کا، اس میں ان کا انٹرویو ہوا تھا۔ تو کرونا وائرس کے متعلق کافی زیادہ انہوں نے بتائی بھی تھی، اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، آئیں چیک کرتے ہیں اور بتائیے گا کیسا بنا ہے اس کا، اور اپنی رائے بھی پلیز کمنٹ میں دیجیے گا کہ کمنٹس آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں۔ بہرحال یہ خود ساختہ ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس کی کتاب کا آغاز ہوا، اس کی تھیوری کا آغاز ہوا 2006 میں، جون 24 2008 کو یہ کتاب منظر عام پہ آئی، اینڈ آف دا ڈیز کے نام سے۔ اس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ جو کووڈ-19 آپ نے لفظ لیا وہی اس کا کوڈ ورڈ تھا۔ اس کے اوپر پھر ہالی ووڈ کے اندر 2010 کے اندر ایک موویز 2 بنائی گئیں جو 2011 میں ریلیز ہوئیں۔ ایکچوئل یہی شہر تھے، یہی ملک تھا، اسی طرح اکانومیکل اٹیک تھے۔ تو یہ اسکرپٹ تھا جس کو ہو بہو اس عالمی چیمپئن امریکہ نے اس دنیا کے اوپر امبوز کر دیا۔ اچھا، یہ صرف امریکہ ہے آپ کے خیال میں، یہ جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، استعمار کہا جاتا ہے؟ امریکہ تو ایک کٹ پتلی ہے نا، پیچھے تو ایک 7 دماغ ہیں، 7 لوگ ہیں۔ کوئی ورلڈ بینک کو سربراہی میں ہے، کوئی IMF کی سربراہی میں ہے، کوئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سربراہی میں ہے، کوئی میڈیا کو ہولڈ کر رہا ہے، کوئی گوگل کو ہولڈ کر رہا ہے، کوئی ٹویٹر کو ہولڈ کر رہا ہے۔ یہ 7 خاندان ہیں جو پوری دنیا کے، ان کی کٹ پتلی جو ہے وہ امریکن صدر ہوتا ہے، اور دنیا کے 190 ممالک کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ امریکی صدر کی کٹ پتلی ہوتے ہیں۔ آپ سمجھنے آپ اسی تھیوری پہ قائم ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کے تحت جو ہے قائم ہوں۔ میں پاکستان میں اس تھیوری کا سب سے بڑا علمبردار ہوں۔ اچھا، 3 مارچ کے بعد 15 مارچ کے اندر اس کی تعداد ایک دم پہنچ گئی 7,50,000، یعنی کہ چائنا میں جہاں 1 ارب 75 کروڑ کی آبادی ہے لگ بھگ، وہاں پر اگر یہ چھونے سے اور اچھوت ہونے سے پھیلنا ہوتا تو کم سے کم 1,75,00,000 مریض تو اس وائرس کا 1 ارب 75 کروڑ مریض اس وائرس کا شکار ہوتے، کیونکہ 40 دن تک تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وائرس ہے کیا۔ بات یہ ہے کہ 3 مارچ سے اور 15 مارچ میں اس میں 8 لاکھ لوگوں کا اضافہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی؟ 80,000 لوگ 3 مہینے میں، اور 10 دن میں 9 لاکھ لوگ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ورلڈ بینک نے اعلان کر دیا کہ جس ملک کی بھی معیشت کرونا وائرس سے ٹوٹے گی یا اس کو نقصان ہوگا، اس کو ہم بلینز آف ڈالر امداد دیں گے۔ اس امداد کی وجہ سے 180 ملکوں میں ایک دم پھیل گیا یہ کہ 10 دن میں 8 لاکھ پیشنٹ کیسے ہو گئے؟ لاکھوں پیشنٹ اس کے شکار ہوئے، بالکل لاکھوں صحیح ہوئے۔ بالکل صحیح۔ جب ویکسین نہیں ہے تو صحیح کہاں سے ہو گئے؟ پہنچایا گیا ہے، کہیں پر چمگادڑ میں ڈالا، کہیں پہ مرغی میں ڈالا، کہیں پہ بکرے میں ڈالا۔ آپ آگے تھیوری آئیں گی، آپ کے سامنے آئیں گی، غلط ہے ہی نہیں یہ۔ کھانے پینے کی ان جانوروں میں ڈالا گیا جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ کیا اگر چمگادڑ میں جا سکتا ہے تو مرغی میں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، جا سکتا ہوں۔ تو بھائی اس طرح پھیل رہا ہے۔ اچھوت نہیں ہے، اچھوت ہوتا تو 1 ارب 75 کروڑ کی آبادی چائنا کی پوری اس کا شکار ہوتی۔ فیصل، اس خوف سے کیسے نکالا جائے؟ یہ یقیناً جو ہے وہ اتنا مہلک مرض نہیں ہے، کیوں جو ہے وہ اس کو اتنا معمہ بنا کے اس وقت پوری دنیا کے اب جو اس کے ریپرکیشنز آئیں گے، خاص طور پہ اکانومی پہ، معاشرت پہ، وہ کیا ہوں گے؟ آئیں گے، آ گئے، کھلنے کا انتظار کریں۔ ہم پاکستان کو یہ تو تقابل کرتے ہیں کہ وہ بند ہو گیا ہم بھی بند ہو جائیں، وہ انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کر لیں۔ یار ان کی معیشت کا اپنی معیشت سے آپ تقابل کر کے دیکھو، آپ کا کیا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ ہمارے ملک کی پہلے ہی صورتحال خراب ہے، ہم دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں، عوام اور افواج پاکستان سمیت لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ کس چیز کا خوف ہے یار؟ خدا سے کبھی خوف ہے اتنا؟ جو اللہ سے نہ ڈرا وہ پھر کرونا سے ڈرا نا؟ خوف کس چیز کا ہے بھائی؟ میری ایک بات سنیں، وائرس جاندار کے لیے، بالکل جاندار، ہر جاندار کے لیے، تو یہ ماسک لگاؤ نا گائے اور بکریوں کو بھی، پھر سینیٹائزر لگواؤ ان کو بھی، کوئی ایشو ہے اس کے اندر؟ مرغیوں کو بھی لگاؤ۔ اگر یہ وائرس خطرناک ہوتا اور ہوا میں ہوتا، ماحول میں ہوتا، فضا میں ہوتا، تو یہ سب سے پہلے تو مرغیاں ہی پولٹری فارم میں مر چکی ہوتی۔ سب سے کمزور تو اس وقت مرغی ہے نا، امیٹیشن گروتھ ہے اس کی، 7 مہینے میں پیدا بننے والی 7 ہفتے میں بن رہی ہے۔ یہ بکرے، یہ مرغیاں، یہ کتے، یہ کوے، یہ بلکہ اس پہ تو ایک بڑا پیارا شعر ہے، یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، پرندوں کا کسی جگہ سے کوچ کر جانا۔ اگر یہ عذاب الہی ہوتا تو پک اینڈ چوز پہ تھوڑی ہوتا، کمپلیٹ ہوتا۔ یہ پرندے، یہ جانور سب مر چکے ہوتے۔ جان کا اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو آدمی فیس کر کے نکل جاتا ہے۔ خوف سے کیسے نکلیں گے؟ ہمارے یہاں تو ویسی فیشن کے تحت یہاں پہ نزلہ زکام کھانسی ہر وقت 26 مریض 60 مریض جو ہیں وہ سندھ کے اندر ریکور ہو گئے، صحت یاب ہو گئے کرونا سے۔ یہاں تو چیز ہی کچھ اور ہے، 3 دن پہلے کرونا مثبت آتا ہے، 3 دن بعد منفی آ جاتا ہے، 3 دن میں اس کے خاندان والے ویسے ہی مر جاتے ہیں سوچ سوچ کے۔ یہ کیا طریقہ ہے یہاں پر؟
कोई ऑथेंटिक न्यूज दें, कोई पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने पे आखिर पाकिस्तान का मीडिया क्यों तुला हुआ है? पूरी दुनिया का धंधा बंद करा के अपना धंधा चला रहे, कमर्शियल अब भी चल रहा है, कमाई अब भी चल रही है, हर आदमी अपना धंधा बंद करे, मीडिया का धंधा चल रहा है इस कोरोना में। पूरी दुनिया का मीडिया इसी को फॉलो कर रहा है। आप ही लॉकडाउन करें, किसने रोका है? आप क्यों खोल के बैठे में धंधा यहाँ पर? पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो कोरोना के अलावा कुछ नहीं दिखा रहा भाईजान। आप और यही प्रिकॉशनरी मेजर्स भी दिखा रहा है। मुराद आपके मीडिया ने तो जिसको नहीं था उसको भी दिखा दिया, बाद में 3 दिन बाद ढिठाई और बेशर्मी से कहा इसको मनफी आया है, उसका तो हो गया बेड़ा गर्क। 2 साल तक ना उससे कोई हाथ मिलाएगा, ना उससे रिश्ता रखेगा, यहां तक कि उसकी बीवी भी उसको छोड़ के भाग जाएगी। अगर ये जानलेवा होता तो ये चरन परन, ये कुत्ते, ये नबादात, ये जानवर, ये बकरे, ये गाय, ये सब मर चुके होते। आज आपका डॉलर किस रेट पर है? 67 मेरे ख्याल। अच्छा, कितने का फर्क आया? 13 रुपए का। अगले 15 दिन में ये 200 पे पहुंच जाएगा और आपने बंद रखा। आपका कर्जा है 150 अरब डॉलर। 150 अरब डॉलर के ऊपर आपका कर्जा इजाफी चढ़ जाएगा 75 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर आपको वर्ल्ड बैंक दे देगा इसके अंदर इमदाद, तो 50 अरब डॉलर का आप सूद समेत कर्जा लेके बैठ जाएंगे। ये होगा इसका आखिर में अंजाम। आप हिफाजती इंतजामात रखें, लोगों को रियासत पाबंद करे हिफाजती इंतजामात की, सफाई की, और शिफ्टों के अंदर आप पहिया खोल दें। पाकिस्तान की मैशियत का चलना इस वक्त की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक जो है वो कोरोना की मद के अंदर 20 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर दे के और 40 अरब डॉलर को ऊपर चढ़ा के और 100 साल आपको और मकरूज करेगा। यही बता रहा हूं, डॉलर को एम्पावर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। खत्म कर दिया जाए। दुनिया में इस मर्ज ने, जो कि जानलेवा भी नहीं है, दुनिया की तमाम इबादत गाहों पे ताला डाल दिया। कितना पावरफुल है, इसको पावरफुल बनाया गया है इस मीडिया के। यही तो मेरा आपसे बुनियादी सवाल। खौफ को फैला के आपको लॉकडाउन पे ले जाके, जब आपकी मैशियत का पहिया रुक गया तो अब अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मैशियत चले ना चले, आपके कर्जों का हजम बढ़ता चला जाएगा। आप जितनी देर इसको मैशियत के पहिए को रोकोगे, आपकी मैशियत पे बोझ बढ़ता चला जाएगा, जो किसी तौर भी ना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना ही पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में है, ना ही अफवाज पाकिस्तान के मुफाद में। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, ये यूं फैला, ये यूं सुकड़ेगा और आखिर में 2 मुल्क निशाना होंगे, एक ईरान, एक पाकिस्तान। लेकिन आपकी तो चाइना का जितना माल मार्केटों में था सब खत्म हो चुका। चाइना ने प्रोडक्शन का आगाज कर दिया। 15 दिन बाद जब आप खोलेंगे तो चाइना का मटेरियल आपकी दहलीज पे होगा। उसने अगर 3 महीने का लॉकडाउन फेस किया है, 3 महीने में पूरी दुनिया ने लॉकडाउन फेस करके अपने आप को चाइना के हम जितनी आ रहा। मैं आपको कह रहा हूँ, आप तो इतने, आपका मीडिया तो इतना काबिल है, 3 दिन पहले मस्बत होता है, 3 दिन बाद मनफी हो जाता है। अब आप लोग की बातों को कौन सुनेगा? जो रिपोर्ट देंगे वही सुनाएंगे। मीडिया अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह सकता। क्या, कौन सी रिपोर्ट है भाई? किस किट पे टेस्ट किया था? हुकूमती ऐसी दुनिया में कौन सी किट है जो 3 दिन पहले मस्बत और 3 दिन बाद मनफी करे? बताएं मुझे आप। इसमें मीडिया कहां आ गया? उसी ने तो फैलाया है। आप आज बंद कर दें, कोरोना पाकिस्तान आएगी वो मीडिया फैला देगा। आप इसको छोड़ें, ये बताएं कि ये आप अपना धंधा करें, दूसरों के धंधों को ताला लगवाएं, ये काम है आप लोग का। आई मीन आपके माइंडसेट का। चलें आगे आए। नहीं, माइंडसेट का मसला, चलें इसको छोड़ें। एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। 3 महीने में 80,000 पेशेंट और 10 दिन में 8 लाख पेशेंट। नहीं, मैंने इस पे पहले कहा कि इस पे मुख्तलिफ आर्गूमेंट हो सकते हैं। हो सकते हैं, बताएं ना। कि एक मुल्क की मैशियत का कोई सोचेगा क्या सूरत हाल है? ये मार्केटें खाली हो गई हैं, धड़ाधड़ एलसियां खुलेंगी, हर चीज इंपोर्ट होती है। 95% इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट है, 5% इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट है। रेवेन्यू आपका पोर्ट से आता है, पोर्ट लॉकडाउन है, रेवेन्यू आएगा कहां से? 5,900 अरब के आप पहले खसारे पे खड़े थे, खुलने के बाद आपका खसारा अनकाउंटेबल है। जो एक माहौल बनाया गया उसके तो लाश के करीब कोई नहीं जा रहा, वजीर कैसे जाएगा? क्यों नहीं जा रहा? वो आप देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब उसके लिए तो जो मोर्चरीज बनाई जा रही है वो भी जो उस है लाश के पास जानवर घुमा के देख लो, अगर जानवर मर जाए ना तो समझना आप भी मर जाओगे। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त कोरोना वायरस की वबा का, और जिस तरीके से फैसल राब्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि अमेरिका जो है वो इसका बेनिफिशरी भी है और वही इसका जिम्मेदार भी है, और 15 दिन में जो है वो इनके मुताबिक जो है ये तमाम तर जो सिलसिला है ये वाइंड अप होने जा रहा है। हालात परेशान कुन नहीं, खतरनाक कुन है। ये जो डेली वेजेस तबका है आपके पास, ये 3 से 4 करोड़ के दरमियान है। उसका मसला राशन तो नहीं है, उसका मसला उसका रूम रेंट है, उसका हाउस रेंट है, उसने घर में पैसे भेजने हैं, उसको एक कार्ड चाहिए जो घर वालों से
राब्ता कायम करे। हर तरफ सोचना चाहिए। यहाँ सिर्फ राशन को बुनियाद बना दिया जाता है, खिलाने का वादा अल्लाह है, वो तो पहुंचेगा किसी न किसी तरह, लेकिन जो उसके दूसरे मसाइल हैं, जो दीगर मरीज हैं, जो दूसरे अमराज हैं, जो दीगर अवाम है या जो मर रहा है, वो तन्हाई के अंदर उसको दफनाया जा रहा है। एक अजीब सी सूरत हाल है। मतलब इंसान देखें, पूरी दुनिया इस वक्त दुआओं पे लग गई। बिल्कुल लग गई। तमाम सरबराह मुमलिकत, तमाम गैर मुस्लिम हुक्मरान, अल्लाह, उसके रसूल और मौला अली की इस वक्त जो निशानियाँ आखिरत की, उस पर गामजन हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और जो हम नाउज़ बिल्लाह, हम जो ठेकेदार हैं अल्लाह के मज़हब हक़ के, हम ताले डाल के बैठे हैं। तो क्या होना है? आपका फेथ होना चाहिए। 2 नंबर कोरोना डाल के घरों में घुस गए सारे सियासतदान, ना कोई आ रहा है किसी को देखने के लिए, ना इन्होंने कोई जिम्मेदारी अदा करनी है। फिर भी आप लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए लेके इसको वोट देने। ये आपका और हुक्मरानों का मसला है, मेरा नहीं है। जहाँ मेरी रियासत का नुकसान होगा मैं वहाँ आऊँगा, वहाँ मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा और उस पर साबित कदमी के साथ खड़ा हो जाऊँगा। मुझे पता है कि मेरी रियासत को सिर्फ इस वायरस से ख़तरा नहीं है, एक जंग बराबर में तैयार खड़ी है, एक अंदरूनी तौर पर लड़ी जा रही है, 3 सरहदें हमारी गैर महफूज हैं। हमें आने वाले हालात को पूरी तरह फोकस करना है। मुझे अगर चाइना की प्रोडक्ट्स के अंदर $50,000 भेजने, तो मैं 5 लाख का वैसे ही मकरूज हो गया हूँ, ये 12 रुपये डिवैल्यू होने से। क्योंकि पहले मैंने भेजने थे 155 रुपये से, अब भेजूंगा मैं 170 रुपये से। 15 रुपये फी डॉलर का फ़र्क तो मुझ जैसे आदमी पे पड़ रहा है। मैं ये फ़र्क आपसे वसूल करूंगा। खुलते ही आपको पता चलेगा कि 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की हो चुकी है, और होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है आपके पास। तीसरा, पाकिस्तान की मईशियत जो कुल रेवेन्यू है 70% कराची देता है, और कराची की भी ये पोर्ट देती है। पोर्ट है लॉक, और पोर्ट के ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अगर ये जो रेवेन्यू आपका कलेक्शन या पोर्ट से होता है, वो अगर आपका 15-20 दिन में नहीं हो पाया, अगले 10 दिन भी और इसमें निकल गए, तो मेरे भाई आप कहाँ खड़े हो गए? कभी इसको कैलकुलेट करें। इस वक्त आपके तमाम सहाफ़ियों को चाहिए कि वो इसको कैलकुलेट करें। दूसरा, अगर पूरे अक़वाम आलम खुदा और उसके रसूल की वैधानियत की तरफ गामजन हो गए, तो आप अपने तामीरी प्रोग्राम करके ये इन लोग को बताएं कि ये तो तुम्हारी किताबों में 2008 में आया। मेरे मौला अली ने तो 1400 साल पहले कहा था कि याजूज माजूज के गले में कीड़ा पैदा होगा और वो चकरा के वहीं गिर के मरेंगे। ये चीजें तो होनी है भाई। 4.5 करोड़ आबादी है कराची की, में मर्दमशुमारी पे लड़ के मर गया। आज तक डाटा कलेक्शन करने की बात कर रहे हैं भाई। आप अगर वोटर्स की तादाद निकाल लें तो 2.5 करोड़ है, तो आबादी 4.5 करोड़ बनी। 4.5 करोड़ आबादी में उस वक्त मैंने मर्दमशुमारी में इस कौम को का आवाज उठाओ, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों का तुम्हें माल दिया जा रहा है, जो 4.5 करोड़ लोगों में तकसीम किया जा रहा है। कराची में तो आप इसको किसी सूरत मेरा सवाल है कि जो जिस मुल्क में या जिस शहर की आबादी पे आज तक कंसेंसस नहीं हो सका, वहां से डाटा कलेक्ट कैसे होगा? डाटा तो है आप लोग के पास, किसने का नहीं है? मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ तो आज तक डाटा कलेक्ट कर रही है, टाइगर पोस्ट बना रही है आपके पास। आप हर हल्के का वोटर निकाल लें तो 2 करोड़ 75 लाख, और ये 1.5 करोड़ कुल आबादी बताते हैं। पता नहीं आसमान से आए थे, पहाड़ों से आए थे, जमीन से आए थे। उस वक्त साथ देते ना आप लोग मेरा। मैं ये मर्दमशुमारी रुकवा के दिखाता आपको। मैं अकेला इस मर्दमशुमारी पे, इस जाली मेडिसिन पे लड़ यार 200 फैक्ट्रियों की हजारों की तादाद में यहाँ मेडिसिन जाली निकली। साबिक चीफ जस्टिस ने उसका एग्जामिन कराया। मैं यही तो लड़ रहा था कि अगर ये जाली है तो जहर है, क्योंकि अगर वो गोली जिसको मर्ज के लिए मैंने इस्तेमाल की है उसको रोक ही नहीं पाएगी तो मेरी डेथ मुतवक्को हो जाएगी। पाकिस्तान में 80% डेथ का वजह तो ये जाली मेडिसिन है। आप लॉकडाउन से ज्यादा इधर तवज्जो इन तमाम फैक्ट्रियों से मेयार सही कराएं मेडिसिन का। आप दुबई की पैनाडोल खा के और पाकिस्तान की पैनाडोल खा के फर्क चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। वायरस को कहते हैं उर्दू में वबा। पूरी दुनिया में जो वबा हो उसको कहते हैं आलमगीर वबा। अब अगर चाइना में बना और इटली में पहुंच गया तो कहीं कोरोना वायरस की किसी शिक में लिखा था पाकिस्तान एग्जेम्प्टेड? आना है ना, पूरी दुनिया में फैलाना है ना, फिर उन मुल्कों में लाना है जहां के लिए बनाया गया, खींच के वापस जो दुनिया को सैनिटाइजर पे लगा दिया। हर वक्त आपका हाथ शराब में डूबा हुआ है। आप साबुन से भी धो सकते हैं भाई, आप आम पानी से भी धो सकते हैं। ये किस तरह की बातें की जा रही हैं? पाकिस्तान ही तो सबके गले में फंसा हुआ है मेरे भाई इस वक्त। आपको पता है अगर यहाँ से ये आलमी ताकतें रिवर्स हो जाएं एशिया से, तो पाकिस्तान की हाकमियत आपको गल्फ समेत साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हर तरफ नजर आएगी। पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत है। इसकी ताकत को लड़के नहीं खत्म किया जा सकता, इसकी ताकत पे पीठ पे छुरा मार के खत्म किया जा सकता है। इन तमाम हल्का काम खोलें, लोगों को काम की तरफ 2-4 घंटे जाने दें। 4 घंटे आप वैसे भी लोगों को छोड़ते हैं, जिसने बाहर से खींच के लाना होगा 4 घंटे में भी लेके आ जाएगा। आया कोई
मैंने आपसे कितना प्यार, तादाद तो मुसलसल मैंने बढ़ रही है, आपको आप बहुत तो कह आसान रहे हैं कि लफ्जों ये में मजीद बताया। बढ़ेगी, मजीद खतरनाक होगा। आप फोन करके पोल्ट्री वालों से पूछ लें तुम्हारे पास मुर्गियां जिंदा है, अगर वो कह देना जिंदा है तो आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं है। आप उससे सवाल का जवाब जो है ना, मैशियत का पहिया चलना चाहिए फौरी तौर पे, वरना हम अगले 20-25 साल तक खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। क्लियर? मैं उसी का तो पूछ रहा हूँ ना, वो क्या, वो फॉर्मूला क्या है भाई आप नाक लपेटी हुई, आप मुंह लपेटे में मुंह लपेट लें, बस यही फार्मूला। और अच्छा, वो तो कहते हैं आंख से भी चला जाएगा, यार कान से भी चला जाएगा। अगर इस तरह जाना होता तो सबसे पहले ये जानवर मर चुके होते। मैंने आपको मिसाल दे दिया। अब ये जितने आपके यहाँ दानिश्वर हैं उनको बुला के पूछ लें ये जानवर क्यों नहीं मर। थोड़ा यहाँ से भी सोचो यार, मतलब इतना भी डरने की जरूरत नहीं। कल को कोई आलमी जंग लग गई तो घर में बैठोगे? नहीं, इस लॉकडाउन मेरे मुल्क को कोई जंग लगा दे मैं घर में बैठूंगा? तो हम देख रहे हैं कराची की सड़कों पे तवाफ मौकफ हो गया, मस्जिदों में ताले पड़ गए, दुनिया अल्लाह रसूल को अपनी पार्लियामेंट के अंदर पुकार रही है, आप लोगों ने लेकिन इसका बड़ा एक दूसरा एस्पेक्ट है कि लोग जो है वो खुदा की तरफ देखना भी शुरू हो गए बहुत। भाईजान मस्जिदों के बाहर सारी रात बैठ के लुड्डो खेल रहे हैं, वहां तो नहीं फैल रहा, दीवार की तरफ मस्जिद में फैल जाएगा, कमाल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुर्बत जो है वो अल्लाह से की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। दुनिया ने देख लिया आपकी कुर्बत, आपका ईमान सब चेक हो गया, हर एक का चेक हो गया। यही चेक करना था अल्लाह ने। और मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया में ये फितना है ना, तो भाईजान ये ताकत तो फिर दज्जाल के पास। और बिल्कुल दज्जाल के हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ सीरीज जो है वो मुसलसल हमारे सामने आ रही हैं। वो उसने पूरी इबादत गाहें, मंदिर, मस्जिद, कलीसा, चर्च, हर चीज बंद करा दी उसने, तमाम ताले पड़े हुए हर तरफ। ये वार है उसका। अल्लाह से पनाह भी मांगी जा रही है, कयामत का खौफ भी जो है वो ऐसा खौफ तारी किया आप लोगों ने, ना कोई छत पे आ रहा है ना गैलरी में आ रहा है, शायद मौत उसके दरवाजे के बाहर खड़ी है, वो सूंघेगा उसको मौत आ जाएगी। सामने एक छोटी सी मुर्गी चलती हुई जाके उसको ये बता रही है कि तुझसे ज्यादा तो मैं ताकतवर हूँ। जी, तो आप बताइएगा प्लीज़, आपको कमेंट्स में आपके क्या राय है। हर किसी का अपना अपना अलग ओपिनियन है, जबकि मुझे जो ऐसा लगा, मैं खुद ऑन ड्यूटी मेडिकल में हूँ, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ मैं, और हमारे पास भी कोरोना के केस इतने ज़्यादा आए नहीं है, तमाशा ज़्यादा बना हुआ है हर चीज़ को लेकर कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। अब आपने अपना ओपिनियन बताइए, फिर इस बारे में दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा और इस बारे में आप लोगों को भी गाइड करूंगा कि मतलब क्या ठीक है क्या नहीं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा अपना ओपिनियन पेश करें ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात कर सकूं और मज़ीद आपके बारे में अपग्रेड कर सकूं। थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।